तो हेलो बेटे। और अर्श कैसा है? बढ़िया। तो वी डिड have a process, right? Nitrogen, hydrogen, 200 atmospheric pressure, iron as the catalyst, molybdenum as the promoter. We did certain bit of chemical reactions of ammonia, and from here let's move ahead. It is going to be 7th of 2020 November. आज माइक नहीं चल रहा, आज क्या हो गया? साइन दूसरा आ रहा है। बेदी कैसा है बेटे? यस बेदी। सो हेलो सर। हेलो गुड़िया, कैसा है? नाइट्रोजन कंबाइन ठीक हो सर। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे 3000 डिग्री सेल्सियस, and this happened during lightning, right? Or at elevated temperature to form nitric oxide. Delta H is positive, मतलब NO is going to be unstable with respect to the oxygen. It immediately react with more of oxygen to form nitrogen dioxide. Immediately NO के बनते ही NO2 बन गया, right? अभी बात करते हैं, this NO2 is going to combine with water. अभी अगले पेज पे बात करते हैं, that is going to percolate down and it will be leading to absorption by the plants. Nitrogen also combines with the other compounds on strong heating. Normal condition में तो nitrogen का reaction होता ही नहीं है। तो calcium carbide plus nitrogen forms calcium cyanamide. Calcium cyanamide is a mixture of calcium, this cyanamide plus carbon, और इस मिक्सचर को हम नाइट्रोलिम बोलते हैं। The nitrolim की importance इसलिए है because this is used as a fertilizer. Upon reaction with water, it produces calcium carbonate along with ammonia. This ammonia is going to be absorbed by plants. तो अपने आप में नंदनी रतन नाइट्रोलिम साइनामाइड प्लस द कार्बन के मिक्सचर को नाइट्रोलिम बोलते हैं बेटे। With alumina in the presence of carbon, it is going to form aluminium nitride. Alumina plus nitrogen डायरेक्ट रिएक्शन नहीं हो रहा, सो कार्बन की जो ऑक्सीडेशन है वो इस प्रोसेस को होने में मदद करेगी बिकॉज alumina is going to be very stable compound. दोनों aluminium nitride और calcium cyanamide are hydrolyzed by water to produce ammonia, forming calcium carbonate and aluminium hydroxide. The calcium cyanamide एक important चीज है बेटे। Uses of ओके सर। अच्छा वो हमारा एक ये रह गया। The rain water carries, ये continued है basically। अरे एक पेज कहाँ गया हमारा? अच्छा मैं जंप कर गया। Use of dinitrogen. It is used in ammonia, nitric acid, calcium cyanamide. It is used for providing inert atmosphere. It is used as refrigerant to preserve biological specimen, freezing foodstuffs, and also in cryosurgery. बेदी जानता है cryosurgery क्या फील्ड है? Anyone? Faintest idea what is this? बहुत कम टेम्परेचर पे मे बी आइस या कुछ ऐसा। कम टेम्परेचर पे। तो दिस इज, मुझे एग्जैक्टली मैं बायोलॉजिकल पर्सन तो नहीं हूँ, मेडिकल में नहीं हूँ, बट व्हेन दे आर गोइंग टू टच सेंटर ट्यूमर टाइप ऑफ थिंग विद वेरी वेरी कोल्ड सब्सटेंस लाइक फ्रोजन नाइट्रोजन, दैट ट्यूमर इज गोइंग टू वेपराइज एंड इमीडिएटली वो वेपराइज होगा, उसको छोटे से सक्शन होल में से सक कर लेंगे, so they can remove 5 kg tumor with the help of the cryosurgery. And it is used in gas filled thermometer for measuring high temperature. आपका जो मरकरी वाला थर्मोमीटर होता है वो हार्डली आपके 150-200 डिग्री से ऊपर नहीं मेजर कर सकता बिकॉज मरकरी स्टार्ट बॉइलिंग, डिस्टिल कर जाता है. So we use certain other substance like nitrogen for measuring more than that temperature. This is like Haber process.
the natural and the bacterial fixation. Large amount of atmospheric nitrogen is brought to the soil by different methods. For example, during lightning, the discharge takes place in the atmosphere resulting into around 3000 degrees Celsius. As a result of this temperature, dinitrogen and oxygen forms nitric oxide. This reaction happens. The nitric oxide is very unstable and it is immediately oxidized to nitrogen peroxide that is going to be the brown in color. Now this get dissolved in rainwater in the presence of oxygen forming the nitric acid. So बिजली के कड़कने से नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बना के दे रही है नाइट्रिक एसिड. The rainwater brings nitric acid to the soil where it combines with calcium carbonate and magnesium carbonate to form respective nitrate. Calcium carbonate forming calcium nitrate, magnesium nitrate. Along with the carbon dioxide and water will be formed. This calcium and magnesium nitrate is going to be assimilated by plants through their roots. Thus, they get fixed in the plant. So that is, the atmospheric nitrogen is naturally fixed into the soil or plants. The atmospheric nitrogen can be converted into useful compound by the action of certain soil bacteria and algae. This process biology वालों को तो पता है, known as symbiosis. The symbiotic bacteria present in the root nodule of the leguminous plants, right, catch up the nitrogen from the atmosphere, supply to the plant, which in turn give food to the bacteria. The process, which is going to be mutually beneficial to two, is known as symbiosis. Natasha, the biochemical process which involves an enzyme known as nitrogenase, in which active site contain molybdenum and iron. जो भी आप कोई चीज क्रिएट करते हैं, आप क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेचर. सो दैट इज हाबर सजेस्टेड दैट जब मैं नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करूंगा, सो दे वर डिस्कवरिंग सर्टेन कैटलिस्ट. सो दे फाउंड आयरन and molybdenum as a promoter. They stole that idea from. Did you understand बेटे? नाइट्रोजन की फिक्सेशन आर्टिफिशियल, नेचुरल आपको दो प्रकार की करवाई गई है. जनरल नॉलेज के लिए दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, द टॉपिक इज extremely important. We will be discussing different type of oxide, mainly the N2O, the NO, the N2O2, N2O4, N2O3, N2O5. We are going to produce and discuss structure of these oxide. The topic is extremely important. पर उम्मीद करिए ऐसे क्वेश्चन. What is the structure of N2O? What is the structure of N2O5? What is the covalency of nitrogen in nitrogen peroxide? Right, son? So, N2O, it is known as nitrous oxide, and the nitrogen is sitting in the +1 oxidation state. +1 oxidation state. You can check it from here. It's a colorless gas, and this is going to be neutral gas and very very stable, unreactive. NO is known as nitric oxide. NO, nitrogen exists in +2. It's again colorless and neutral gases, neutral oxide. It will be paramagnetic, अभी डिस्कस करते हैं. Very reactive and thermodynamically unstable. इसके फॉर्मेशन के लिए बेटे डेल्टा G was positive. N2O3, nitrogen 3 oxide. It's a pale blue solid. रतन, स्ट्रेस कर रहा हूं बेटे, जब बता रहा हूं तो इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, so you should be very attentive, sir. Okay, sir. Only thing which is going to be blue solid बनाएगा. This is going to be unstable in gaseous phase. Nitrogen 4 oxide.
It's again colorless solid or liquid, and this is going to be acidic. देख सारे acidic हैं, सिर्फ N2O और NO are going to be neutral. This is going to exist in equilibrium. अभी करने वाले हैं बेटे इनका, है ना. NO2 is going to be very reactive and it is paramagnetic. ध्यान करो, the two paramagnetic NO2 and NO. N2O5, the nitrogen 5 oxide plus 5 में, it's a colorless solid or gas and it is going to be acidic depending upon temperature की condition. This is going to be unstable as gas. In solid state, it exists in ionic form as NO2 plus and nitrate ion. NO2 plus and NO3 negative में ये exist करता है. Although Pearl 100% this is memory, but हमने memory अपनी inorganic part के लिए बचा के रखी है. तो Pearl दीदी मुझे इनके MOP याद चाहिए. बेदी एम्स Okay, sir. क्वेश्चन आएगा, in which of the following the NO can be produced? You have to do it. There is no shortcut to that. You have to do that. अब कैसे करोगे, किस प्रकार से होगा, that Okay, you sir. have to learn. But सुनो बिटिया, this is going to be very important. I repeat, मुझे MOP of nitrogen चाहिए, मुझे मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर नाइट्रोजन चाहिए. ऐसे हद से हद तुम्हें 10 एक चीजें याद करने के लिए बोलूंगा, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, राइट. बट मुझे ये चाहिए और ये याद रखना बेटे, इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है गुड़िया, तो इसको रीड नहीं कर रहा हूं बिकॉज यू हैव टू डू इट एंड देयर Yes, इज नो sir. शॉर्टकट अबाउट दैट. सो ये तो करना ही पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा. तो श्रेया, पर्ल, NO and NO2 are used in manufacture of nitric acid and fertilizers. बेटिया रीड करने का है. He can ask you the brown color gas which is used for the preparation of nitric acid. ABCD option दे सकता है. Liquid N2O4 Okay, sir. used as an oxidizer for rocket fuel, क्योंकि जब ये डिकम्पोज करेगा ये नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन पैदा करेगा, and because of that it will be used in oxidizer. NO causes pollution in the atmosphere due to its poisonous nature. अभी पढ़ाता हूं इसके बारे में और इंटरेस्टिंग चीज. Its vapor are emitted in atmosphere during, जब आप अपनी गाड़ी चलाते हैं, आप एयरप्लेन चलाते हैं, तो NO रिलीज होती है. अभी पीछे जो वो 9/11 हुआ था, तो उस समय अमेरिका में और कनाडा में उन्होंने पूरे के पूरे प्लेन्स, एयर स्पेस बंद कर दी थी. सो दैट टाइम वी फाउंड ड्रामेटिक रिडक्शन इन द एयर पॉल्यूटेंट दैट इज NO. समथिंग लाइक जब ये कोरोना वायरस का अभी कार्यक्रम हुआ था, तो हमने पॉल्यूशन को गिरते पाया था. नाउ वी आर पासिंग थ्रू एन एक्सट्रीमली important phase, right? Not important, I'm writing extremely important. Structure of nitrogen dioxide, एक एक करके बनाते हैं. चल भी अन्य, तुम्हारे से शुरुआत करते हैं. तो अन्य बेटा बेशक ऊपर बना हुआ है पर खुद भी बनाते हैं. ठीक अन्य, तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस Yes. इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं गुड़िया? 5. तो 5. इस वाली नाइट्रोजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन देख रहा? हम्म, 6. माइनस समझ आ गया शेरखान? Yes, sir. इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन देख रहा है? 4. तो पॉजिटिव समझ आ गया. Yes, sir. इस वाली ऑक्सीजन पे गुड़िया कितने चार्ज होगा? Positive. दोबारा सोच, हिंट दे रहा हूं. न्यूट्रल होना चाहिए वैसे. तो और क्या, 2 4 6 आते गुड़िया. इसका रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन इधर भेज दे. ये इलेक्ट्रॉन इधर भेजा तो ये ट्रिपल बॉन्ड समझ आ गया गुड़िया इधर को. Yes, sir. और इसको इधर भेज दे. ठीक है जी. तो 2 लॉन पेयर तो पहले ही थे. जस्ट अ मिनट बेटे,
तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 लोन पेयर हो गए, तो नेगेटिव हो गया ऑक्सीजन। तो इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। सुन गुड़िया, अभी नहीं समझा तो क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स में चेक करना, तुमने एक क्वेश्चन किया होगा, उस समय तो मैंने बताया था कि व्हाट इज द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ N2O। याद करना, थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन में मिल जाएगा। द मीनिंग इज इफ यू डू नॉट नो द स्ट्रक्चर, आपसे वो क्वेश्चन नहीं होना था, बट इन एनी केस दिस इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन विच यू पीपल शुड नॉट लीव। ठीक है बेटे, आगे चल सकते हैं। गुड। ओके सर। एमी चल, तेरा माइक यूज करते हैं गुड़िया। एमी, NO, इसको बोलता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये भी बहना क्या चीज है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल। पिछले वाला भी न्यूट्रल था गुड़िया। सो नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटिया, 5। तो 5 नजर आ रहे हैं नाइट्रोजन के, 1 यस सर। 5। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। 6। 1 2 4 5 6, राइट। सो इस इलेक्ट्रॉन को देखो, मेरा कर्सर देख पा रहा है, दिस यस सर। गोइंग टू बी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड पेयर तो देखा, सॉरी लॉन पेयर तो देखा था, ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं देखा। अब इसको कभी कभी ऐसा भी दिखा देते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर गया, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, राइट, तो एक सेकेंड, इसको ऐसे नहीं शिफ्ट कर रहा है, बट ही इज डूइंग इस इलेक्ट्रॉन को उठा के इस ऑक्सीजन में शिफ्ट कर रहा है। तो ओके सर। नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो गया। अब 4 देख रहा ना, यस सर। और इसके ऊपर ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। एक इलेक्ट्रॉन उसका प्रोटॉन होता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव, राइट। कभी कभी इस स्ट्रक्चर को, ये देख नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये ऐसा था ना, यस सर। ये नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये एक एक पेयर ले लेगा उससे, और ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी लिखा जा सकता है। यू अंडरस्टैंड? ओके सर। तो बेटे यस सर। सारे के सारे स्ट्रक्चर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, N2O और NO में से कौन सा मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, so that is NO will be attracted towards the magnet। चले बेटिया, NO2 यस सर। स्ट्रक्चर वहां भी बने हुए हैं, बट हम इसलिए बना रहे हैं कि एक प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना, तो उनमें कोई फर्क नहीं है, मतलब सेम स्ट्रक्चर। तो आपको NO2, दिस इज गोइंग टू बी NO, समझ आ रहा है, नाइट्रोजन यस सर। 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन के 2 2 4 और एक रहा इधर, एक सेकंड बेटा, तो एक इधर रहा, ठीक है जी। मैंने एक एक बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं, मैं बस उसकी प्रेजेंटेशन चेंज कर रहा हूँ, ठीक, बिल्कुल ठीक है बेटा। तो वो इधर रखा ये, और इधर ये, समझ आ रहा है, नाइट्रोजन के यस सर। अब देख ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये वाला जो, यस सर। ये एज अ डेटिव बॉन्ड इसकी तरफ चले जाता है। I'm drawing the dative bond, right? अब जब डेटिव बॉन्ड बनता है, दोबारा बना रहा हूं बेटे आपकी रेफरेंस के लिए, ये बेसिकली आई एम सॉरी, उधर दिखाना था, ध्यान से देख, पर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना, यानी ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये बेसिकली किसका है, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का। इस करके नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, और बहना इसके ऊपर क्या चार्ज दिखाते हैं, नेगेटिव। नेगेटिव। जहां भी डेटिव बॉन्ड बनता था तुम ये करते हो,
तो ये चार्ज होगा। अब रेजोनेंस का क्या मतलब होता है, एक बार ये वाला सिंगल दिखाया था, एक बार ये दिखाया था, तो अगली बारी डबल दे दे, तो इधर आ गया नेगेटिव, इधर आ गया पॉजिटिव। ये लगे। वो दोनों सारे सेम हैं, ऊपर वाले भी वही हैं, बट सिर्फ समझाने के लिए मैं बार बार इसको बना रहा हूं। So this molecule is going to be what? Odd electron molecule. बेदी, इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन होगा डली? बैठा है इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, ठीक है। So this is going to have one electron. That is going to be odd electron molecule. मेहमत, पर्ल, नंदनी, नहीं समझ आया बात करो, अभी बनाते हैं। बट No, sir. It's clear. क्लियर? आगे आ गया Yes, सर। sir. गुड। चलो जी आगे चलते हैं। सनी, सनी, दिस इज N2O4 बिटिया, N2O4। सनी, अभी पिछले पेज पे पर्ल आपने ये स्ट्रक्चर बनाया था NO2 का। अरे यस सर। जब डेटिव बॉन्ड बना, जिसकी तरफ से बना उसकी तरफ पॉजिटिव, उसकी तरफ नेगेटिव। अब गुड़िया देख, ये आपके पास दूसरा NO2 आ गया, यस सर। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन पर दोनों के N2O4। बॉन्ड बना दे, तो ये क्या हुआ? N2O4, राइट? N2O4। एक मिनट रुकना, एक मिनट, दमन का फोन है, एक सेकेंड। दोबारा करो दमन, वो कट गया। सो दिस इज एवरी, एम आई ऑडिबल? क्लैरिटी से है? यस सर। तो Yes, sir. ये समझ गया बेटा। अब देख, जब रेजोनेंस दिखाता है, एक बार इनको ऑपोजिट दिखा दे, एक बार दोनों को सेम तरफ दिखा दे। यानी कि नंदिनी इधर दिखा दे डबल बॉन्ड, इधर दिखा दे गुड़िया डबल बॉन्ड, इधर दिखा दे डेटिव बॉन्ड, और इधर दिखा दे डेटिव बॉन्ड। That. And Yes, you sir. should not forget, either you draw a dative bond or you draw a single bond like this, that is going to be the same thing. It is your responsibility that you have to understand it. आगे जा सकता हूं, राइट? Yes, sir. दमन शायद मम्मा फोन कर रहे हैं, उनको बोलो कि क्लास चल रही है। Excuse me. हाँ बोल बेटा। दमन आप बता दो। सर ये जो दोनों नीचे स्ट्रक्चर्स वो सेम नहीं है। ये देखना, इधर दोनों, हाँ गुड़िया दोनों सेम है, तो इसको ऐसा कर देते हैं, दोनों सेम है। ऊपर वाले अलग हैं दोनों। हाँ इसमें अभी अभी ठीक कर देता हूँ, तो अभी सेम कर देता हूँ, अभी ठीक कर देता हूँ। इधर ये था, ठीक है जी, डबल बॉन्ड। अब की बार दोनों को नीचे लेटर कर देता हूँ, ठीक है। ये दोनों सिंगल बॉन्ड एक तरफ थे, अब दोनों सिंगल बॉन्ड ऑपोजिट तरफ है। दैट इज द केस बिटवीन some sort of, but don't call it the cis and trans. वेदी समझ आएगा? आगे चलूं? यस सर। चल गुड़िया, तो N2O5, N2O5, N2O5 अभी अभी, एक मिनट बेटे, एक सेकंड रुको, एक मिनट रुको प्लीज। एवरीबॉडी एबल टू हियर मी ना? हाँ तभी तो मेरे साथ पर्ल और अन्या ये सब बात कर रहे हैं। तो एम ऑडिबल? यस सर, पर आवाज थोड़ी जैसे अटक रही है, पर मेरा भी नेट आज बहुत अच्छा नहीं है, तो मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है। मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो नताशा ठीक है? पर्ल अब ये देखो, Yes, sir. तो यस सर। ये देख N2O5 बनाया था ना गुड़िया, तो ये N2O5 था, इसके बीच में एक ऑक्सीजन डाल दे, दिस इज N2O5 जो NO4 बनाया था, N2O4। अब दोनों डबल बॉन्ड एक तरफ रखे हैं, अब रणा एक को पलट दे,
तो ध्यान से दोनों को नहीं पलटना रहा, इधर ऑक्सीजन रख दे, इधर ये रख दे। डू यू अंडरस्टैंड? एंड सुनो, Yes, जब sir. डेटिव बॉन्ड आता है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे Me नेगेटिव दिखा सकते। नेगेटिव। एंड डिट्टो सिमिलरली N2O3। अभी अभी तुमने N2O4 का स्ट्रक्चर बनाया था ना, N2O4 में से एक ऑक्सीजन उड़ा दो। दिस इज गोइंग टू बी द N2O3 का स्ट्रक्चर। मुझे ये सारे के सारे स्ट्रक्चर चाहिए। एक बार दोबारा, दिस इज NO2, नाइट्रोजन, डेटिव बॉन्ड और ऑड इलेक्ट्रॉन। एक बार N2O4, नाइट्रोजन, डेटिव बॉन्ड, नाइट्रोजन, डेटिव बॉन्ड और डबल बॉन्ड। एक बार N2O, नाइट्रोजन, डेटिव बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया के रह गया। दिस इज द लॉफिंग गैस, दिस इज द लॉफिंग गैस, राइट? द डेटिव बॉन्ड इज गोइंग टूवर्ड ऑक्सीजन। पर दीदी ध्यान से देख गुड़िया, ऐसा अगर चाहता विडिया तो ऐसा भी दिखा सकता था। आपको याद है ना, ट्यूसडे को आपका टेस्ट आ रहा है, तो जो यस सर। जो नॉन मेडिकल वाले हैं उनको मैं भेज दूंगा। तो जो मेडिकल वाले हैं वो पूरा ऑर्गेनिक का वो आप अपने उनके वहां पे करेंगे। फोर्थ, what we did was the N2O3. Fifth, we did was N2O5. So these are the structures you people have done. इसमें क्या हुआ था रतन? इधर एक डेटिव बॉन्ड नहीं था। एक डेटिव बॉन्ड नहीं था, इधर लॉन्ग पेयर था। और N2O4 N2O5 में क्या था? पर क्वेश्चन पता है कैसे पूछना? वो ड्रा तो करवा नहीं सकता आपसे ऑब्जेक्टिव में। वो पूछेगा नाइट्रोजन की कोवलेंसी कितनी है, which of the following has nitrogen oxygen nitrogen bond, which of the following has nitrogen nitrogen bond? Do you understand? This type of questions Yes, sir. are going to be asked, but definitely this is an important topic. दमन अब ठीक है भाई? Going ahead, Karthik. तो Karthik, N2O laughing gas produces hysteria, right? And it is a neutral. Don't try it, never ever try it. First time and every time you people should say no to anything which your family, your society does not permit. All of you, right? So as a teacher I should tell you, जैसे भांग, right? भांग तो उसमें कुछ ऐसे हमारे पास ओपिएट्स होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, वो आपके दिमाग में किसी ऐसी जगह पे जाके डॉक करता है जो कि आपकी रैशनल थिंकिंग को ले जाता है। नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज, अगर आपकी कोई थॉट प्रोसेस उस वक्त चल रही थी वो उसको लॉक कर देगा। अगर आप हंस रहे हैं नंदनी, आप हंसते ही चले जाएंगे। जब तक वो नशा नहीं उतरेगा तब तक बंदा हंसता ही चल जाएगा। और जरूरी नहीं है हंसना, रोना भी शुरू कर सकता है, बिकॉज दिस इज हिस्टीरिया, right? So don't ever try it unless and until a qualified medico authorized person is going to give you N2O। और वो देते हैं, वो आपको anesthetic agent यूज होता है आपके डेंटिस्ट्री में और माइनर ऑपरेशंस के अंदर। N2O is also an unreactive, so it is used as a propellant for whipped ice cream। ये जो हमारी पर्ल को आइसक्रीम सॉफ्टी बहुत पसंद है पर्ल, तो उसके अंदर जो हवा भरी रहती है दैट इज N2O विडे, सो इट एक्ट एज एन एनेस्थेटिक। N2O5 is a strong oxidizing agent, so N2O5 will be forming I2O5 along with nitrogen। I told you it is going to give you oxygen, ऑक्सीजन I के साथ कंबाइन करके I2O5 बनाएगी और नाइट्रोजन प्रोड्यूस करेगी। The N2O3, NO2, O5 are acidic oxide। बेबी पर्ल एमी जरा ध्यान कर, इंदर इतने ऑक्सीडेशन स्टेट केड़ी है ये? इंदर चेक कर दोस्त। यस इंदर, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? Hello, sir, +3. व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट बेटे?
Sir, +3. एनहाइड्राइड्स मतलब किसी में से वाटर निकाल देना. Anhydride is going to be in the same oxidation state as the hydride यानी कि इस वक्त acid, right? For example, any यहाँ पे oxidation state check कर गुड़िया, मेरे ऊपर यकीन मत करना because you are being trained, I'm not being trained. +5, +5. So ध्यान से सुन अंदर, the N2O5 is known as nitric anhydride, whereas N2O3 is known as what, my son? The nitrous anhydride. Check करने के लिए oxidation state is always going to be the same. Got it? Now, Okay, sir. NO2 is called mixed anhydride because NO2 +4 में बैठा है. ये डिस्प्रपोर्शनेट करता है पानी के साथ. It goes to +3. So it is going to be what, son? Reduced. And it goes to +5. It is going to be what? Oxidized. Oxidized. So NO2 is known as Inder the Great mixed Anhydride. मिक्स्ड एनहाइड्राइड बिकॉज ये दो प्रकार के Yes, sir. देता है, जबकि N2O3, N2O आर नोन एज ऐसे ही बोला जाता है. सेम ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंटेन करते हैं. बस याद रखना +4 वाला NO2 is going to act as a mixed anhydride. Anhydride. Although the NO, nitric oxide, is very reactive and toxic, it acts as neurotransmitter. ये हमारे डाटा ट्रांसमिशन में, सिग्नल ट्रांसमिशन में बायोलॉजिकली मदद करता है. It has been found to control blood pressure as a vasodilator. आर्टरीज को, वेन्स को डायलेट कर देता है. It has been found to help against bacterial as well as viral infection. ये बेदी जैसे साइंटिस्ट अभी बताएंगे हमें 10-12 साल में. Recently it has been found that NO is going to be effective against viruses also, but it is being researched. So that is the नाइट्रोजन के ऑक्साइड की स्टोरी. आप लोगों को भूलने की किसी भी हाल में नहीं है. चल सकता हूं आगे. वो देश सबसे ज्यादा एडवांस्ड माना जाता है जो सबसे ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड, सबसे ज्यादा नाइट्रिक एसिड, because they are used practically everywhere, right? Practically everywhere. And NaOH को सबसे ज्यादा यूज करता है. So that is the reason the nitric acid, which is known as aqua fortis. Fortis का मतलब होता है स्ट्रेंथ और aqua is पानी. तो स्ट्रेंथ वाला वाटर, इसको हम नाइट्रिक एसिड को कभी बोला करते थे. सो दैट इज गोइंग टू बी द नाइट्रिक एसिड की स्टोरी, एंड बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस वी आर गोइंग टू स्टडी इट. नाइट्रिक एसिड. Nitric acid is commonly manufactured by Ostwald process. Expect a theory question under 5 marks. Write a detailed note on Ostwald process. How can you prepare nitric acid? Give 2 reactions showing that it acts as a powerful oxidizer. Also show its flow sheet diagram. So that is the Ostwald process. Nitric acid is manufactured by this process in which it is prepared from ammonia. The flow sheet का मतलब होता है box बना के. We do not want that you should tell us the complete well labeled diagram of furnace and other thing. So in the first stage you're going to take ammonia and you're going to oxidize it. That's the first stage. The ammonia is burnt. That is going to give you NO and water. That's the first stage. So when you're going to heat it, you'll be getting NO. Here, the platinum gauze act as a catalyst.
because normally NO की formation happens at very high temperature. So we are not giving that much of temperature, otherwise this will make the cost very high. तो पर्ल यहाँ पे क्या चीज बनी गुड़िया? NO. अब NO को ठंडा किया गया, इसको ठंडा किया गया और इसको अगले चैम्बर में ले गया, ऑक्सीडेशन चैम्बर. This is the heart of the process. NO react with oxygen producing what? The NO2, right? This NO2 is going to be taken further and अगले चैम्बर में यहाँ पे हमने क्वार्ट्स डाला हुआ है. नीचे से the NO2 गैस ऊपर आ रही है, ऊपर से पानी स्प्रे करवाते हैं. अगले पेज पे रिएक्शन आ रहे हैं. The pani is going to react with NO2 to produce nitric acid, and from here we are going to get nitric acid separated. और इसमें जो बची कुची NO होगी वो उसको उठा के रिसाइकलिंग पहली स्टेज पे ले आएगा. That is going to be the flow sheet diagram. The theory: it is prepared by catalytic oxidation of ammonia by atmospheric oxygen. The reaction is carried out at 500 Kelvin at about 9 bar pressure in the presence of platinum or rhodium gauze. Gauze is jali as a catalyst. Ammonia, oxygen forms NO and water. Delta H is negative. The nitric acid thus formed immediately combined with oxygen to form NO2 in the next chamber. देखा, उसको oxidation chamber बोला था. Now the NO2 so formed dissolved in water to give nitric acid. This is going to produce certain amount of NO which is going to be recycled. The NO thus produced is recycled and aqueous nitric acid can be concentrated by distillation up to 68% by mass, after which it will be forming an azeotropic mixture. The dilute nitric acid is further concentrated by dehydration with concentrated sulfuric acid. Sulfuric acid उसमें से पानी को सोख लेगा to give about 98% acid. The process is going to be extremely important. Those were the times कि हम इसमें से 5-5 नंबर के क्वेश्चन देखते थे. जेई एडवांस्ड में इवन 12 नंबर के भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखे हैं. So दमन भैया सुन पा रहा है? Now I'm audible, right, Daman? Daman, the laboratory preparation of nitric acid. In the laboratory, the nitric acid, वो commercial था, can be produced by heating sodium nitrite with sulfuric acid. This is a salt, and sulfuric acid is going to react with that, producing NaHSO4. That's again a salt, नीचे बैठ जाएगा, and producing nitric acid. The anhydrous nitric acid can be obtained by distillation of concentrated nitric acid with P4O10. P4O10 अभी करवाता हूँ. It is going to be a powerful dehydrating agent. ये किसी भी चीज में से पानी निकाल सकता है. It is one of the most powerful dehydrating agent in your hand. Nitric acid की property में its pure nitric acid is a colorless liquid. It has a boiling point, याद नहीं करना, काफी ज्यादा है और freezing point 231 के आसपास है. The laboratory grade nitric acid contains 68% by nitric acid and has a gravity of 1.504. What is specific gravity? Does anyone know it? बोलो. हाँ बेटा. By density of? Relative density. With respect to whom? Water. Water. So that is water की density 1 होती है. So it is specific gravity इतनी है. The impure acid is generally yellow due to presence of nitrogen dioxide as impurity. जब आप, पता नहीं बेदी तुम्हें याद है कि नहीं, अगर तुमने नाइट्रिक एसिड की बोतल खोली है लेबोरेटरी में
तो उसमें से ब्राउन कलर्ड फ्यूम्स निकलते हैं. That is because of NO2. The nitric acid containing dissolved Yes, sir. NO2 is known as fuming nitric acid. Fuming nitric acid. It has काफी बुरा action on skin, जो छोड़ता ही नहीं है, and produces painful blisters. Rather ये स्किन को येलो कर देता है due to formation of xanthoproteins. Even it can render the wool or proteins जिसमें भी हैं उनको पीले रंग का कर देता है. So that is the nitric acid, because this is going to be one of the Okay. most popular, most powerful oxidizing agent. जब कोई भी चीज फंस जाती है कि मैं ऑक्सीडाइज नहीं होऊंगा, तो तब मैं लेबोरेटरी में नाइट्रिक एसिड को बाहर निकालता हूं. Because of its importance, we have to discuss its common acidic property. It is common properties. It is one of the strongest acid because it is almost completely dissociated to form H plus and nitrous acid. Being acid, it will turn blue litmus red. I think you have never forgotten A for acid, B for blue, R for red. Acid turns blue litmus red. That is going to be the test for acids. उल्टा red Yes, sir. blue हमारा basis करते हैं. बेस करता है. It forms salt with alkalis. Oh, ये क्या हुआ? Alkalis. So this is going to be alkalis. क्या होते हैं बेटिया? KOH. Producing what, son? NaNO3. NaNO3 plus water. It react with carbonates. Sodium carbonate. क्या बनाएगा गुड़िया? NaNO3 plus CO2 plus H2O. Very good. और it react with bicarbonates. क्या बनाएगा? Same. Yes, sir. Did you understand? बेदी, सनक पता है क्या होती है? सनक. I'm talking to all of you. Passion. So inorganic में गुड़िया पैशन रखना, और इसके लिए बहुत ज्यादा रिवार्ड लेके आती है. तुम पेपर दे के मुझे आके बाहर फोन करोगे अगर इनऑर्गेनिक किया. अदरवाइज जितना मर्जी पढ़ लो, कोई तुम्हारा रिजल्ट आपका कंपटीशन में नहीं आने का. तो इनऑर्गेनिक को ध्यान से पढ़ना. और इनऑर्गेनिक आने पे क्या सबके Okay, sir. खांसी आ जाती है, हो गया. मेरा गला सबसे ज्यादा काम करता है इसमें. और जब ऑर्गेनिक चलती है ना, सच में मेरा 3 महीने गला बिल्कुल सूखा रहता है, बिकॉज मुझे बोलना ज्यादा पड़ता है. बट आई नो इसका फायदा होता है बेटे. एमी दीदी, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड डिपेंड्स अपॉन नेचर. सो दैट इज व्हाई एमी ऐसा बिहेव करती है, हिमांशु ऐसा करता है, इंदर ऐसा करता है. सो इट इज इनहेरेंट. कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेशन का फर्क पड़ेगा और टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा. बेटे जरूर पढ़ने का है, और ध्यान से. हमने समरी बनाने की कोशिश की है. मेटल्स दैट आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एक्सेट्रा. In this case, nascent hydrogen is liberated, which further reduces nitric acid. For example, करा दूंगा. तुम मैग्नीशियम ले लो, नाइट्रिक एसिड डालो, क्या बनेगा? मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन. Nascent oxygen. Hydrogen. हाइड्रोजन इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट गुड़िया. हाइड्रोजन अल्कली मेटल क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज होते हैं. नाउ दिस रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड producing reduction product plus water. Now ये reduction product क्या क्या होगा, ये आपको mind my language रट्टा मारना होगा. ठीक. In this case, Okay, sir. the principal product is NO2 with concentrated nitric acid. गुड़िया, concentrated nitric acid के साथ क्या मिलता है? NO2. NO2. N2O with dilute nitric acid. dilute nitric acid के साथ क्या मिलता है? N2O. N2O. अगर very dilute nitric acid होगा
तो क्या मिलता है, पढ़ के बता, कोई टेस्ट थोड़ा चल रहा। अमोनियम नाइट्रेट। Nitrate. फॉर Yes, sir. एग्जाम्पल ये चीज जो मैं लिख रहा हूँ बेटिया, उस पर ध्यान करना, ऑल ऑफ यू फोकस ऑन दैट, बिकॉज वो तो समझ आ जाएगी, कोई डाउट ही नहीं। देख, जिंक लेता हूं, राइट, एक बार लेता हूं नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट, एक बार कॉन्सेंट्रेटेड ले लेता हूं, उसी ऑर्डर में ले लूंगा ना जैसे ऊपर लिखा था। एक बार डाइल्यूट ले लेता हूं और एक बार गुड़िया वेरी डाइल्यूट ले लेता हूं। Very dilute. देख, कॉन्सेंट्रेटेड ऊपर से पढ़ के बता, NO2, NO2. डाइल्यूट में N2O, Dilute का N2O. और इसमें क्या मिलेगा, अमोनियम नाइट्रेट। Ammonium nitrate. और देख, याद करने का सबसे अच्छा तरीका, सब में आपके पास जिंक नाइट्रेट प्लस वाटर तो भगवान का प्रसाद है, सभी जगह पे लगा देना, समझा। Okay, sir. एक कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ डाइल्यूट के साथ दोनों, वो वेरी डाइल्यूट के साथ बढ़िया अमोनियम नाइट्रेट। पर दीदी ये देखना, ये तो सब में ही है। और डिट्टो सेम बिटिया, एल्यूमिनियम का, मैंगनीज का, जिंक का, आयरन का, लेड का होगा। मतलब पर तुम्हें इस चीज के ऊपर और इस चीज के ऊपर ध्यान करना होगा। लो जी, कितनी इक्वेशंस याद कर ली तुमने, ठीक है ना इंदर। और इंदर क्वेश्चन तो आएंगे बेटा। और एक चीज देखो, तुम लेट इट बी इक्विलिब्रियम में से कितना कुछ पढ़ोगे तो जाके 4 क्वेश्चन की चांसेस बनेंगे, जबकि इसमें जो दिख रहा है उसी में से क्वेश्चन बनेगा। सो दैट इज गोइंग टू बी द रिवार्ड यू पीपल कैन हैव। तो एमी पिछले पेज पे हमने सीखा मेटल्स दैट आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। अब यहाँ पे आप सीख रहे हैं द मेटल्स व्हिच आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, copper, bismuth, silver, mercury. In this case, hydrogen is not liberated. बहना, अगर कॉन्सेंट्रेटेड लिया और डाइल्यूट लिया, देख कॉन्सेंट्रेटेड के साथ एक ऑक्सीजन ज्यादा और डाइल्यूट के साथ एक ऑक्सीजन कम मिलेगा। और देख, कॉपर को तो नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज करेगा ही करेगा, इसके आगे किसकी चलती है, ये तो हर चीज को ऑक्सीडाइज करता है। You ever get a chance, लेबोरेटरी में जाने के लिए आप अपनी जेब से 5-10 रुपए का सिक्का निकालना, उसको टोंग से पकड़ना, उसके ऊपर नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड डालना, आप देखेंगे इसमें से ब्लू कलर्ड गैसेस निकलनी शुरू हो जाएगी। इररिस्पेक्टिव आपके पास जो भी सिल्वर था या आयरन था या व्हाटएवर था, बिकॉज नाइट्रिक एसिड के आगे सिवाय प्लैटिनम की और गोल्ड की, बस इनको छोड़ के बाकी सारे रिएक्ट में जाएंगे। दोज आर वेरी अनरिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है बेटे। और ये देखना, पर कॉपर नाइट्रेट और वाटर तो दोनों में था, सिर्फ आपने क्या देखा, NO2 NO। और एमी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, वेरी डाइल्यूट, किनके केस में आया गुड़िया, विच आर गोइंग टू बी More electropositive. हाइड्रोजन, राइट। चल सकता हूं तो जो मेरी बात मानेंगे, राइट, तो आपके जेई से, आपके नीट और जेई से पहले इनऑर्गेनिक के लेक्चर खुलवा दूंगा, राइट, उस समय फाइनल पे, उसमें से बस नॉवल के जैसे इनऑर्गेनिक को मेरी पढ़ के बता रहा हूँ, फायदा होगा। आपका जो रैंक आना है 510 520 नंबर आने हैं, मेडिकल वालों से तो बात कर रहा हूँ, वो एकदम ऊपर चढ़ेगा, तकरीबन 50-60 नंबर। और नॉन मेड वाले जो आपका रैंक 1 लाख 1.25 लाख आएगा, अगर इनऑर्गेनिक उस समय पढ़ोगे, वो एकदम 10-12 हजार ऑल इंडिया रैंक पे आ सकता है। आप इससे ऊपर भी ले सकते हैं। नॉन मेडिकल के लिए बात की 10-12 हजार की, मेडिकल वालों के लिए तो कुछ और ही सिस्टम होगा। तो चल भी, कौन बात करेगा? नहमत, पर्ल, नताशा। Yes, sir. दिस इज गोइंग टू बी एक्शन ऑफ पर्ल नोबल मेटल। पर लिस्ट बनाना, ठीक है जी। नोबल मेटल्स, नोबल मेटल्स कौन से होते हैं गुड़िया? Gold, platinum. जिसके तू ऑर्नामेंट बनाता है। पर जब तू खूब कामयाब होगा, बस मेरे को फोटो जरूर भेजना, है ना, तो गॉड ब्लेस यू। तो आप पर्ल रोहोडियम के, सीमियम के, इरिडियम के ऑर्नामेंट अफोर्ड कर पाएंगे।
और पर्ल ये चमकते हुए वाइट ऑर्नामेंट्स है। जैसे प्लैटिनम है ना गुड़िया, प्लैटिनम तो चमकता तो है बट ये डल है। गोल्ड जो है वो क्या है गुड़िया, येलो है। ये सारे के सारे वाइट है, चमकते हुए इनके ऑर्नामेंट्स बनते हैं, शाइनिंग ग्लिटरिंग। तुमने देखा नहीं होगा इरिडियम बिकॉज दे आर वेरी वेरी कॉस्टली। तो पर्ल जब तो खूब बड़ा साइंटिस्ट बन जाएगा ना, मेरे को फोटो जरूर भेजना कि तुम्हें ये ऑर्नामेंट पहने हुए भेजेगा पर्ल पक्का। तो यस सर। गॉड ब्लेस यू सन, लेके आ। तो पर्ल ये नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं, इनको और मजबूत एक्वा रीजिया, बहना नाइट्रिक एसिड को क्या बोला था, एक्वा फोर्टिस, इसको बोला एक्वा। एक्वारीजिया। एक्वा रीजिया में 3 पार्ट HCl हैं, 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड है बाय वॉल्यूम। इंपॉर्टेंट चीज है, पर जानबूझ के एक्वा रीजिया में कितने पार्ट HCl कितने पार्ट नाइट्रिक एसिड बाय वॉल्यूम है। 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड। अब पेपर में तो ऐसे गड़बड़ होने के चांसेस होंगे, भाई कैसे याद रखेगा कि नाइट्रिक एसिड 1 पार्ट है। राजा का क्योंकि एक्वा फोर्ट ना, राजा कभी किसी में जगह 2 होते हैं, नो सर। तो विच इज द किंग इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड 1 पार्ट होगा। याद रखना फायदा होगा, बता रहा हूं तेरे को, गुरु मंत्र है याद करने का। तो बहना जब तू नाइट्रिक एसिड और HCl को मिक्स करेगा तो तुम्हें एक बहुत जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेगा, क्लोरीन। गॉट इट। इस क्लोरीन यस सर। के गोल्ड की नहीं चलती, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कभी कभी पर वो तुम्हें ऐसे भी पूछेगा, यू विल रिमेंबर राइट, दैट इज गोइंग टू फॉर्म द, हाँ जी गुड़िया, AuCl3। UCl3। अब AuCl3 इज अ लुईस एसिड, तो ये HCl के साथ मिलके, जैसे बेदी उस दिन बता रहा था, गोल्ड के पास वेकेंट d ऑर्बिटल है, वो क्लोराइड के साथ एक डेटिव बॉन्ड बना लेगा और ये कॉम्प्लेक्स बना सकता है बेटे, HAuCl4। और अगर आपने प्लैटिनम यूज किया तो क्लोरीन तो पता है ना कहां से आ रहा है, यस सर। तो ये प्लैटिनम आगे HCl के साथ मिलके पढ़ के बता, ये सॉल्ट बना सकता है। यानी कि PTCl6। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। प्लैटिनम फॉर्म्स PTCl6 -2, गोल्ड फॉर्म AuCl4। Cl4। डिड यू अंडरस्टैंड? और क्या यस सर। को पता है NOCl को क्या बोलते हैं? Tilden reagent, NOCl, that is known as ओके Tilden सर। reagent। तुमने देखा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, तुमने देखा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, दे ऑल रिएक्ट सिमिलरली बेटे, दे ऑल रिएक्ट सिमिलरली। और तुमने देखा नोबल मेटल्स के साथ रिएक्शन, समझा? अब आगे चलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नाइट्रिक एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, पीछे क्या आ रहा था, मेटल्स, अब नॉन मेटल्स, who can be escaping from nitric acid? It has a tendency to give nascent oxygen। देखो बच्चों, याद करना कितना तरीका, आसान तरीका है। तो S8 कार्बन, फास्फोरस, आयोडीन, आर्सेनिक, नाइट्रिक एसिड ताकत रखता है इसको, सल्फर को कहां पहुंचाने की, SO3 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। पानी के साथ मिलके गुड़िया ये उसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड बनाएगा। कार्बन को
ऑक्सीडाइज करेगा कहाँ पे, CO2 में, और उसको आज माइक नहीं चला, नेट में गड़बड़ है, कार्बोनिक एसिड, आज पर तो रिकॉर्डिंग में मुझे सुन रहा होगा. सो दिस इज गोइंग टू बी फास्फोरस. यस बेबी, कहाँ जाएगा, P2O5. और इसका डली कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड कौन सा होगा, H3PO4. इसको शेर खान कहाँ लेके जाएगा, I2O5. इसका डली कॉरेस्पॉन्डिंग आयोडिक एसिड होता है. एक परायोडिक एसिड भी होता है बट उसको बनाना मुश्किल होता है. नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, जैसे फास्फोरस गया ऐसे इसको भेज दे AS2O5. Yes, sir. इससे कौन सा मिलेगा गुड़िया, H3ASO. और देखना बाकी सब में NO2 प्लस वाटर क्या था, Common. Yes, sir. समझा. चलो, ये किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, एलिमेंट्स को, नॉन मेटल्स को. आगे अब कंपाउंड्स में चला, फर्क देख, A डैश, A डैश, 2 डैश, 3 डैश. आई होप यू अंडरस्टैंड. Yes, sir. Concentrated or dilute. पहचान, डाइल्यूट के साथ क्या आया, NO. समझा. Yes, sir. कॉन्सेंट्रेटेड के साथ बहना, NO2 आ गया. पानी तो भगवान का प्रसाद है, जहां मर्जी बस इसको तो चढ़ा दिया कर, इससे मत शर्म किया करो, है ना. पानी तो आता ही आता, ठीक है जी. पानी की कोई टेंशन नहीं है, पानी तो जहां भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखो को बस दे दो उसको. अब Okay, sir. सल्फाइड goes to sulfur, SO2 goes to SO3. ferric. Oh, Ferrous goes to ferric. याद हो गया, मैंने कौन सा कोई काम किया है ना, ये तो आप ही ने किया, समझ आएगा. Yes, sir. और nitric acid can oxidized practically every compound. सोच समझ के करना, चीनी को लेबोरेटरी में ले जाना, उसके अंदर नाइट्रिक एसिड डाल देना, वो उसमें से एकदम NO2 निकालेगा. NO2 क्या होती है, गैस. शीशे के बर्तन Gas. मत करना क्योंकि शीशे का बर्तन फटने के चांसेस हैं. गैस ब्लास्ट, राइट. एंड ऑक्सैलिक एसिड इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड, कहीं पे बाकी किसी जगह पे भी कर सकता है. नाइट्रिक एसिड is going to turn the protein into yellow compound, nitro compound, that is known as xanthoprotein. Hence, this turns the skin, the wool, Yellow. यार बायो में किया होगा है ना, तो ये तो नहीं क्या, पर xantho येलो होता है तो उससे समझ आ गया था. अब जरा ध्यान से बेटिया, तो किस दिन शायद तुमने ही पूछा था कोऑर्डिनेशन में, अब आया है रिंग टेस्ट फॉर्मेट. सुन, जहां पे मैं ये काम करता हूं ना, तो वो इंपॉर्टेंस की वजह से होता है, ठीक. इन चीजों को नहीं छोड़ने का, ये उन चीजों को नहीं सजाया जाता है जो काम की नहीं होती है, उन चीजों को सजाया जाता है जो काम की होती है. डू नॉट फॉरगेट इट सन, ठीक है. रिंग Okay, sir. और नाइट्रेट है, तुम्हारे पास सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट है, तुम चेक करना चाहते हो कि है कि नहीं. इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेस्ट, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड. Nitrate gives brown ring test with ferrous ion in the presence of concentrated sulfuric acid. This is based upon tendency of ferrous खुद होंगे oxidized to reduce nitrate to nitric oxide, which react with ferrous to form a brown ring complex. इधर देख, ये क्या है गुड़िया, ferrous, nitrate. Ferrous. ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग,
खुद क्या हो गया, रिड्यूस, reduce, +5 से +2 पे आ गया। ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, oxidize, इसको कर दिया रिड्यूस। पहली क्वेश्चन पढ़ के बता, वैसे कोशिश कर आंखें बंद कर, फिर बता, अगर गलती की तो आंख खोल लेना थोड़ी सी। मतलब इक्वेशन पूरी, ओके। फेरस प्लस NO3 नेगेटिव is equal to ferric ion plus NO। ये खा गया और हाँ, साथ में एसिडिक, प्रोटॉन्स, 4 प्रोटॉन्स, मतलब एसिडिक। इसमें तू सल्फ्यूरिक एसिड डालेगा बहना, राइट। सल्फ्यूरिक एसिड इस प्रोटॉन इज आल्सो गोइंग टू बी एसिड, ऑक्सीडाइजिंग है। बना क्या बहना, NO फेरिक। NO और फेरिक। ये जो तुमने मुझे बताया ये कैसे करते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं। The test is usually performed by adding dilute ferrous sulfate to a solution containing nitrate। आपने एक टेस्ट ट्यूब ले ली, उसमें आपको सस्पेक्टेड है कि इसमें नाइट्रेट है, उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट डाल दी। अब सल्फ्यूरिक एसिड को धीरे धीरे से ग्लास की जो आपकी ट्यूब है उसकी ग्लास की वॉल पे डालना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड धीरे धीरे जाएगा और वो ग्लास की जो टेस्ट ट्यूब के जो कोने हैं वहां पे एक ये कॉम्प्लेक्स बना देगा। दिस इज गोइंग टू बी द ब्राउन रिंग एट द इंटरफेस। अब फेरस जो पहले था उसने NO के साथ फिर दोबारा कॉम्प्लेक्स बनाया, इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल थे, इसके पास लोन पेयर था, तो ये बन गया FeH2O5NO2+। तुमने ये नहीं बोलना है, राइट, ये नॉर्मल आदमी बोलता है। आप आयरन को लेते हो +2 में और NO को लेते हो 0 में, पेंटा 0 हुआ नाइट्रोसिल आयरन 2 ion which is going to be what, the brown complex। ब्राउन। एक्चुअली तुमने ये बोलना ही नहीं, राइट, इसलिए लिखा है कि ये नॉर्मली तुम्हें मिलता है, तुमने ये वाला बोलना है, दिस इज द एक्चुअल। The actual, the iron is in +1 and NO is in nitrosonium due to electron transfer from NO से यहाँ पे क्या चले जाता है, इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ब्राउन कलर लगता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से। Therefore, the correct name is penta aqua nitrosonium, right son? The nitrogen oxide NO plus में है nitrosonium and iron plus आयरन 1। complex. This is the brown complex. That question has been asked and many times. I hope मैंने तुम्हें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी एक सेक्शन के रूप में आपको करवाया है बेटा। चलो आगे। यस सर। चलो जी, तो वैसे तुम लोगों को हंसाने के लिए क्या करना चाहिए कि तुम्हें लेटा के तुम्हारे पेट पे गुदगुदी करनी चाहिए। देन यू आर गोइंग टू टॉक, देन यू आर गोइंग टू लिसन, देन यू आर गोइंग टू ओपन योर प्यारा सा मुंह। 2-3 लोगों को छोड़ के कोई बात ही नहीं करता, जैसे अरमान सिंह आराम से बैठा हुआ है। अरमान सिंह यार ऐसा लगता है जैसे दीवार को पढ़ा रहे हो। वो तो शुक्र है कि सर मैं तो अभी आया हूं सर। बेदी ये नए अपडेट में वो आने ही नहीं दे रहा था अंदर, बड़ी मुश्किल से हुआ। तो इन कुछ Join। लोगों का माइक चलता है, वरना तो वैसे है कि जैसे वो गुरुद्वारे मंदिर में बैठे हो तो भगवान जी तो कभी आते नहीं है, तो हम तो बस मूर्तियों की या मे भी किताबों की पूजा करके आ जाते हैं। So that is something like this. So this class is always going to be one side and really it hurts because ऐसा कोई चीज हो कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि वहां पे तुम्हारा फायदा है, तो तुम लोग कहोगे मैं नहीं जाता, मेरे को तो वहां पे फायदा नहीं है भाई। मेरे को हम कह रहे हैं कि फायदा है, तुम्हारे पेरेंट्स कह रहे हैं, तुम्हारा सिस्टम कह रहे हैं, और आफ्टर 20 इयर्स यू विल रिकॉग्नाइज फायदा था, बट यू पीपल डू नॉट वांट टू गो। तो खैर मेरा ख्याल ज्यादा से ज्यादा 20-25 दिन, 1 महीना लगा लो, तो उसके बाद यू विल रिमेंबर दैट आई यूज्ड टू से सर्टेन थिंग्स, बिकॉज आफ्टर दैट nobody will be interested in your life. Nobody. It may seems to be harsh, but that is going to happen. The moment you enter into the professional college, no one except your few friends
जिनके साथ तुम्हें लगता है कि वो सुपरफिशियली तुम्हारे साथ हैं, तो उनके अलावा किसी टीचर को तुम्हारे में इंटरेस्ट नहीं होगा, because you people themselves are not going ahead. So use your mic, talk, you will be benefited. चलिए, because I'm not going to tolerate this thing in the revision classes. Revision classes मुझे दीवारों को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे तो सिलेबस खत्म कराना is going to be एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप ऐसे ही बैठोगे तो you will be the sufferer. Used in the manufacture of ammonium nitrate. Anyway, ये तो खैर आप खुद रीड करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चल अरमान बात करे यार। अरमान, नाइट्रस यस सर। स्ट्रक्चर, ठीक, स्कूल के लिए नहीं, कॉम्पिटिशन्स के लिए। दिस इज नाइट्रस एसिड, एक डबल बॉन्ड O, एक OH, एक लॉन्ग पेयर में। दिस इज नाइट्रिक एसिड, सेकंड वाला, ओ ये वाला, ठीक, ये वाले को मैंने नाइट्रिक एसिड बोला है, सेकंड वाले को। तो दिस इज HNO3, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितना बेटा? 4 हाँ पढ़ के बता। 2, 3। कोवेलेंट। और अगर यहाँ पे कौशल आपको रजा उसने ऐसा दिखा दिया तो कहना हाँ जी बिल्कुल सही है, फॉर्मल चार्ज। और पर ऑक्सो नाइट्रिक एसिड, ये जो ऑक्सीजन है इसके बीच में एक और ऑक्सीजन घुसेड़ दे। यस सर। राइट। एंड चौथा इज हाइपोनाइट्रस एसिड, इट्स बेसिकली डाइमर NOH का, NOH, NOH, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3 और 2, 5 नजर आ रहे हैं। दैट इज गोइंग टू बी हाइपोनाइट्रस एसिड। तुम्हारे स्कूल की CBSE की जो बुक है, NCERT की जो बुक है, वो सिर्फ सेकंड की बात करेगी, वो बात नहीं करेगी द मॉलिक्यूल 1, 3, 4 की। तो आपकी मर्जी है, इफ यू पीपल वांट टू गो फॉर इट, यू प्लीज गो फॉर इट, यू विल बी बेनिफिटेड। ठीक, चल सकता हूं आगे? चलो, ठीक है सर। ठीक है सर। हम बड़े अगली कैटेगरी की तरफ, दैट इज फास्फोरस। मतलब ग्रुप नंबर 15 का लास्ट हाफ शुरू हो गया है, बट नाइट्रोजन वाज द मेजर। फास्फोरस is widely distributed in phosphorane, fluorapatite, chloropatite. This is calcium phosphate, this is calcium phosphate, this is calcium fluoride, this is calcium chloride, and this is phosphorane. पढ़ लेना, excreta of seaworms, milk, egg और किन चीजों में ये पाया जाता है। बेटा ये रीडिंग वाला है तो समझाने वाली जगह पे रोकने वाला। फास्फोरस की मेरे पास 3 मेजर फॉर्म्स पाई गई हैं एलोट्रोपिक। द पहला येलो और व्हाइट, एक ही चीज है, वैसे व्हाइट होता है पर धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होके ये P4O10 की लेयर बनाएगा। तो एक मिनट, यस आई एम ऑडिबल? बीच में कोई ग्लिच हुआ था बेटे। क्वेश्चन सुन पा रहा है? ओके सर, सही है। सर ठीक है सर। वो बीच में एकदम डिप हुआ था। तो व्हाइट इज द प्योर फॉर्म इज व्हाइट, बट धीरे धीरे येलो कलर बन जाता है ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ thin film of the red variety on the surface. It's a transparent waxy solid and can be easily cut with knife. Density 1.8. It has characteristic garlic smell. Is poisonous in nature. 0.15 ग्राम किसी का भी हैप्पी बर्थडे करने के लिए फैटल है। Vapors are also injurious. Person working with the phosphorus develop a disease in which the jawbone decay. This is known as phossy jaw. It is insoluble in water but readily soluble in carbon disulfide. It melts in summers
right, at around 45 degrees Celsius into a yellow liquid and boils at 280 degree. आप समझ सकते हैं कि कुछ भी नहीं है, 280 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल कर जाता है. In contact with air, it undergoes slow combustion and glows in dark. This property is called phosphorence. Therefore, the P4 obtained is stored under water to protect it from reaction with air. Only at 30 डिग्री सेल्सियस, जो हमारे देश में तो नॉर्मली पहुंच जाता है, फॉस्फोरस व्हाइट वाला, रेड वाला ऑटोमेटिकली, व्हाइट और येलो सॉरी, कन्वर्ट होता है P4O10. अब इसका स्ट्रक्चर करवाता हूं, विच इज अ डाइमर ऑफ P2O5. दैट इज बेदी. जो जानवर अभी ताजा ताजा मरा है तो उसकी बोन्स के अंदर फॉस्फोरस होता है. तो अगर आप उसको गर्मी वाली रात में, जून में, अप्रैल में देखोगे, अगर नाइट का टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर है तो वो ग्लो कर रही होगी. ग्लो करेगा. ओके सर. बिकॉज ऑफ दिस. तो अब तो रैगिंग होती सर भी नहीं चाहिए. तो गलती से अगर ऐसा मेडिकल कॉलेज में हो, यू नो द फिनोमेना. हाँ बोलो. सर वैसे केले के छिलके में भी फॉस्फोरस होता है. वो तो बेटे आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो आप मेरे से ज्यादा जानते हो, तो वो तो हमें सर्च करना पड़ेगा. बट एज अ केमिस्ट आई डू नॉट नो. सर होता है शायद से. पक्का होता होगा, बट वो आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो आप मेरे से ज्यादा अच्छा जानते होंगे, बट मुझे भी ढूंढना पड़ेगा बेटे. कौशल, ये जो रिएक्शन बोलने वाला हूँ जी वाला, मैं इंपॉर्टेंट लिखता जा रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा ध्यान करने का दोस्त. ठीक है. इट डिसॉल्व in caustic alkali on boiling in inert atmosphere. हवा नहीं लगने देनी. हवा लग गया तो उसको क्या बन जाएगा? P2O5 to form phosphine. I'm stressing it is a very important again. ये क्वेश्चन इंदर तुम्हें आ सकता है. Show 3 disproportionation reactions, right? और बार बार आएगा how phosphine is being produced. Phosphorus is sitting in Kaushal 0 oxidation state में, right? Here the phosphorus is going into -3 oxidation state. Here the phosphorus बच्चे चेक कर +1 oxidation state में. So ये क्या हो रहा है दोस्त? ऑक्सीडाइज. Right? बेदी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर गुड़िया. और ये क्या हो रहा है? This is going to be the reduction is going to happen. समझा? यस. G part important. ये आपके लिए it forms क्लोरीन के साथ PCl3 and ये भी आपके लिए. It combined with sulfur with explosive violence. Number of sulfide P2O3, P2O5. मैं पता है मैं क्या बोल रहा हूँ. P2O, P4O3, P2O7. मैं जस्ट कंपेयर कर रहा था इसको ऑक्सीजन के साथ. Phosphorus is a strong reducing agent. It reduces nitric acid and sulfuric acid. दूसरे तरीके से आप कह सकते हो नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइज फॉस्फोरस टू फॉस्फोरिक एसिड. आप याद करो, आपने बहुत जगह पे HI and red phosphorus that become a very very powerful good reducing agent यूज किया था. HI अपने आप में एक reducing agent है. अगर साथ में phosphorus लग गया तो वो उसकी reducing power को exponential बढ़ा देता है. सीधा मैं कार्बोक्सिलिक एसिड से उठा के, एल्डिहाइड से उठा के अल्केन बना सकता हूं. That is a power of the Williamson synthesis. Williamson synthesis और कौन सी सिंथेसिस आई थी? एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस किया था बच्चों अल्केन्स में. क्लीमेंसन आता था, भेड़िए का नाम लगता था. जिंक अमालगम HCl आता था. चलो ये मेरी आवाज सुन के वेरीफाई कर लेना. भेड़िए का नाम भी बोला, वुल्फ किश्नर भी बोला, राइट? When heated in inert atmosphere at 240, it changes into red variety.
येलो फॉस्फोरस हीट करने पे कन्वर्ट हो गया है रेड फॉस्फोरस में इन द इनर्ट एटमॉस्फेयर. The white phosphorus is least stable and therefore more reactive than other solid phases under normal condition because of angular strain in P4 where angles are only 60 degree. White phosphorus contain discrete P4 molecule, whereas red phosphorus is going to be the polymeric P4, that is going to be white phosphorus का. समझा है एमी? The white and the red phosphorus का स्ट्रक्चर आपको बेटे बताने की कोशिश कर रहे हैं. Right? Now the second Yes, sir. is going to be the red phosphorus. पहला कौन सा था? White White and yellow. और येलो. दूजा कौन सा आया है? रेड. Red phosphorus. इसके बाद आएगा ब्लैक. द ब्लैक फॉस्फोरस इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म. अभी हम सेकंड में हैं. द रेड इज obtained by heating white phosphorus for several days in inert. अगर ऑक्सीजन हुई तो वो चले जाएगा P410 पे. So when red phosphorus is heated under high pressure, a series of black phosphorus के phases मिलते हैं. रेड फॉस्फोरस आयरन ग्रे लस्टर होता है मेटल के जैसा. इट इज नो स्मेल एंड नॉन पॉइजनस. पिछले वाला याद है 0.15 of 1.5 gram. the white phosphorus was what? Poison. Fatal. White P4 was fatal. fatal मतलब किसी को मारने के लिए. 0.15 ग्राम कुछ भी नहीं है, सच में कुछ भी नहीं है. 150 मिलीग्राम. तो जबकि दिस इज नॉन पॉइजनस, इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज कार्बन डाइसल्फाइड. पिछले वाला वॉज सॉल्युबल इन पानी में नहीं था, कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल था. केमिकली इज मच लेस रिएक्टिव देन द व्हाइट फॉस्फोरस. डज नॉट डाउन. जैसा अभी अभी तुम्हें बताया था, इसका स्ट्रक्चर इज पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ व्हाट? द P4. ये बेटे तुम लोग रीड करने वाले हो, राइट? जस्ट रीड इट. इट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. इट डज नॉट रिएक्ट विद कास्टिक एल्कलीज. याद है पीछे आपने फॉस्फोरस के साथ अगर NaOH को रिएक्ट कराया था व्हाइट वाले को, तो आपको NaH2PO2 मिला था, साथ में फॉस्फीन मिला था. Now the third is the black phosphorus. It has two form, alpha and beta black. रटने की जरूरत नहीं है. एसिड वाले को साथ में फॉस्फीन में फॉस्फोरस. ओके, एम ऑडिबल? ठीक है सर. तो it is formed when red phosphorus is heated in seal tube at even high temperature. It can be sublimed in air and has opaque monoclinic or rhombohedral crystal. Does not oxidize in air. It does not burn in air. Black phosphorus is one of the most stable form of the three form. You read it, but this is going to be definitely एक knowledgeable चीज होगी. Red phosphorus rat poison. Phosphorus 32 वैसे phosphorus 31 होता है, is used for treatment of certain types of cancers. जहाँ पे फिल्मों में आपने धुआं सा निकलते देखा होगा, वो P4 को हम जला के P2O5 बनाते हैं. It is used in compounds, medicines, PCl5, etc. में ये नाम आता है. So this is structure of white, the red, and this is going to be the structure of the black phosphorus. Kindly go through that. This is going to be summary of important properties, not all. Phosphine जो हमने पीछे बनाई है,
वो अपने आप जलती है ऑक्सीजन के साथ और बनाती है P2O5 वाटर, राइट। और जब भी फॉस्फीन बनती है तो उसके साथ एक और चीज जन्म लेती है P2H4। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कैल्शियम फॉस्फाइड के ऊपर वाटर डालूं तो हमें मिलेगा फॉस्फीन, जो कि एक जलने वाली गैस है। इसके साथ हमें एक और चीज मिलेगी, फॉस्फोरस डाइहाइड्रेट। दिस इज समथिंग लाइक, इफ यू इमेजिन, माचिस की तिल्ली है, आपके पास गैस का स्टोव तो है बट माचिस नहीं है तो वो नहीं जलेगी। सो P2H4 is going to be a match stick for phosphine. Let's see, this is going to turn into an interesting story. The spontaneous inflammability of phosphine at the time of preparation is due to presence of highly inflammable phosphorus dihydrate. This property is using in making Holmes signal, which are said to be save our soul signal. Holmes signal. A mixture of calcium carbide and calcium phosphide is placed in a metallic container. जैसे कैनन तोप का गोला आप समझ पा रहे हैं, वैसा उसने उसके अंदर ये डाल दिया। The two holes are made and the container is thrown into the sea. तो इंजीनियर्स ने ऐसा कुछ डिवाइस किया, केमिस्ट के साथ बैठते हुए ऐसा गोला बना लिया। इसके अंदर उन्होंने डाल दिया कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड। अब होता क्या है, जैसे तोप आप समझ सकते हैं। नाउ द शिप इज इन डिस्ट्रेस, मे बी वो डूबने लगा है, मे बी पायरेट्स ने अटैक कर दिया है, कुछ भी हो गया है। तो अब कैप्टन क्या ऑर्डर करेगा कि नाउ वी आर इन डिस्ट्रेस, अब मुश्किल है हमारे लिए निकलना। तो वो कैनन के रास्ते से इन तोप के गोलों को 360 डिग्री फायर करवा देगा। 360 डिग्री, ये 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर कहीं भी दूर जाके सी में गिर सकता है। नाउ व्हाट विल हैपन वंस इट लैंड्स इनटू द सी, यहां से वाटर अंदर जाएगा, इसके साथ मिलेगा एसिटालीन, इससे मिलेगा फॉस्फीन, ये दोनों जलने वाली गैसेस हैं, और साथ में इससे हमें मिलेगा P2H4। दिस इज द मैच स्टिक, ये इनको जला देगा, दिस विल बी फायर, और हमें यहां से काफी देर तक इसमें से आग निकलती रहेगी। अब उस सी के अंदर कुछ तैर रहा है जिसमें आग है, सो दैट इज डेफिनेटली अ सिग्नल कि यहाँ पे कोई इंसान ने ही काम किया है। सो दैट इज नोन एज होल्म सिग्नल और SOS सिग्नल, सेव आवर सोल। So that is the application of this. The water enter, produces acetylene and phosphine respectively. The gaseous mixture catches fire spontaneously. The acetylene produces a bright flame which serves as a signal to the approaching ship. This is also used in making smoke screen. वहां पे हम आग तो नहीं लगाते हैं, but definitely हम उसको as धुआं controlled quantity में हम उसको use करते हैं। That is going to be the Holmes signal. Similarly, the matchstick P4S3 is a compound जो कि आप अपने घरों में जो मैचस्टिक है उसमें यूज करते हो। द मैचेस, एक तरफ से आपके पास ये मैचस्टिक है, इसके अंदर उसने P4S3, KClO3, KClO3, थोड़ा सा फिलर, राइट, पोरस बनाने के लिए, जेलेटिन उसको होल्ड करवाने के लिए एज अ बाइंडर इसके ऊपर लगा दिया है। नाउ अब आपके पास वो जो मैच बॉक्स है उसके साइड पे यहाँ पे सैंड पेपर एक फाइन क्वालिटी का उन्होंने उसकी प्रिपरेशन के दौरान ही लगा दिया है साइड पे। Whenever you are going to rub this stick head on this thing, so there will be friction. The frictional heat between the matchstick and the sandpaper on the side of the matchstick initiate a reaction between P4S3 जलने वाला, KClO3 oxygen देने वाला. This generates sufficient heat, matches the activation energy, और जिससे वहां पे आग लग जाती है।
So that is going to be the chemistry of matchstick. हम आज के दिन में ये जो लकड़ी है इसको हम कार्बोराइज्ड कर देते हैं ताकि अगर आप उसको बुझाओ तो वो इमीडिएटली सुलगती ना रहे, वो चलती रहे. That is a chemistry of this thing. Phosphine मैंने आपको अभी अभी कराया. You will go through that. Phosphine ये आपके पढ़ने वाला होगा, right? ये आपके रीडिंग करने वाला है, तो मैं इसको स्किप क्या कर रहा हूँ, आपको रीडिंग के लिए दे रहा हूँ. That has to be read only. I'm just not stressing upon something where I do not find a question, right? तो ये आप रीड करेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज फॉस्फीन की आप रीड करेंगे. Not very much important, but at the same time we cannot take any chance. जैसे आपने अमोनिया को जला के NO बनाया था, फॉस्फीन को जला के आप P2O5 बनाते हैं. Action of chlorine, you will read it. यहाँ पे phosphine is a weak base, even weaker than ammonia. तुम लोगों को याद होगा हम लोगों ने आपसे बात की थी इसका साइज और इसके साइज में अंतर है. So this is going to be weaker and this is going to be stronger. He has asked in your NCERT, give a reaction or how does phosphine react with HCl, proving that phosphine is a Lewis base. Like ammonia, phosphine also act as a Lewis base, forming phosphonium chloride or halide, and it also act as a Lewis base ligand in coordination compound. चल सकते हैं बेटे? ये भी आपके लिए, Yes, sir. ये भी आपके लिए. तो किसी इंपॉर्टेंट जगह पे रुकूंगा. ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस, सुनो. आज नहीं जाऊंगा, इसका भोग नहीं डालूंगा, ठीक है बेटे? यहाँ पे रुकेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम इसका भोग भी डाल देंगे. बाय भोग आई वांट टू से दैट वी विल बी एबल टू फिनिश इट ऑफ. एंड ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस से वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि अब ना थोड़ी समझाने वाली चीज आएंगी और मुझे तकरीबन 1 घंटा 1.25 घंटा लगेगा. So I have to go with the structures of anhydrides. इन सबके आपसे स्ट्रक्चर बनवाने हैं. So that I will be doing in the next class myself. ये इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी, बट हाँ हम इसको खत्म कर पाएंगे अगली क्लास के अंदर. So that will be the chapter. सर एक चीज पूछनी थी. पूछो. जैसे सर काफी चीजें आपने जो आज पढ़ाई वो कुछ कुछ मतलब एनसीईआरटी में नहीं थी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अलावा, तो सर उनके भी नोट्स बनाने. एनसीईआरटी के तो ये पूछते रहना, जहां भी आपको डाउट आए ना हमेशा पूछते रहना, कभी भी शर्म मत करना, बेशक 50 बार और पूछना. देख बेटे एनसीईआरटी के तो नोट्स बना मत. एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक. सो एनसीईआरटी को तो वहीं पे ही अंडरलाइन कर, एक कॉपी लगा ले जिसमें अगर तुझे कोई इंपॉर्टेंट चीज लिखती है उसको वहां पे लिखता रहे, क्योंकि कई बार जब हम अपने हाथ से बनाते हैं, बट जो चीज मैंने करवाई और एनसीईआरटी में नहीं है उसको लिख लेना. समझ गया? एनसीईआरटी के ऊपर एनसीईआरटी में ऐड कर सकता है. वैसे मैं इनऑर्गेनिक या नॉर्मली नोट्स आपको ऐसे बोलता हूँ कि आप ना लूज शीट्स ले लें, तो लूज शीट्स के ऊपर आप जो जो चीजें वहां पे नहीं है उसको लिखते रहें और अपनी एनसीईआरटी में स्टेपल कर दें. समझा? क्योंकि अगर 2-3 जगह. सर पर आपने पहले, हाँ बोलो. सर पर आपने पहले तो बोला था सिर्फ मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखना है. वो तो अभी भी कह रहा हूँ बेटे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको वहां नहीं मिलती हैं, जो समझने वाली, सिर्फ वही लिख. इनऑर्गेनिक के नोट्स ऑर्गेनिक या फिजिकल केमिस्ट्री के जैसे मत बनाओ, वेस्टेज होगी. अभी भी क्या है, जो चीज वहां पे नहीं मिलती है उसको, बाकी इसकी भी तो फाइल बना के रखना, रख. ठीक है बेटे? और कंफ्यूजन हो तो मेरे को फोन कर लेना, मेरे को और अच्छा बता दूंगा. ओके, so we stop here and see you again with oxides of phosphorus in the next class, my dear friends. Good luck, dear friends. Anything to ask? अरे बोल लो यार.
कुछ नहीं जाएगा। प्रथम Thank you, sir. बाय। अरे No, sir. बाय, टेक केयर, गुड लक, थैंक यू Thank you. सर। Thank you, sir. बाय बेटे, साइनिंग ऑफ, टेक केयर, गुड लक।